اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فیوچر میں اس ارتھ پر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اور اب لوگ اس ارتھ کو چھوڑ کر ایک نیو پلینٹ کی طرف موو کر رہے ہیں جس کا نام ہے نووا پرائم۔ یہاں پر مووی میں ہم ایک آرمی کو دیکھتے ہیں جن کے سولجرز ہیومن کو ارتھ سے نووا پرائم شفٹ کرنے میں ہیلپ کر رہے تھے، اور اب یہیں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس پلینٹ پر یعنی نووا پرائم پر جہاں ہیومنز موو کر رہے تھے وہاں کوئی اور ایلینز بھی رہتے تھے، اور وہ ایلینز اپنے پلینٹ پر سے ہیومنز سے چھٹکارا پانے کے لیے ان پر عجیب کریچر چھوڑتے ہیں، لیکن یہ کریچر بلائنڈ ہے اور یہ کریچر انسانوں کے اسکیری بیہیویئر کو ڈیٹیکٹ کر کر ان پر اٹیک کرتی تھی، یعنی جو انسان ان سے ڈرتے تھے ان کریچرز کو پتہ چل جاتا تھا اور اس طرح وہ کریچر انسانوں پر اٹیک کر دیتی تھی، اور اب انہی کریچرز کی وجہ سے ہیومنز ایکسٹنٹ ہونے والے تھے۔ اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دوبارہ 1000 سال بعد اسی آرمی کو دکھایا جاتا ہے جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا، اور اس آرمی نے ہیومنز کو بچانے کے لیے ان خطرناک کریچرز کو ختم کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس آرمی کا کمانڈر جس کا نام سائفر ہے، اس نے ان کریچرز کو مارنے کی ایک ٹیکنیک ڈھونڈی تھی اور اس کا نام گھوسٹنگ رکھا تھا۔ اس ٹیکنیک کا یوز کرتے ہوئے بغیر ڈرے ان کے پاس جاتا تھا تو وہ کریچرز انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی تھی، اور ایسے ان کریچرز کے کمپلیٹ بلائنڈ ہونے پر وہ لوگ ان کریچرز کو مار دیا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ سین میں ہمیں کچھ ٹین ایجرز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ رینجرز بننے کے لیے انسانوں کے نیو پلینٹ یعنی نووا پرائم پر ٹریننگ لے رہے تھے، اور انہی بچوں میں اب ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام کٹائے ہے، اور یہیں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ کٹائے کمانڈر سائفر کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ان کریچرز کو مارنے والی ٹیکنیک یعنی گھوسٹنگ کو ڈھونڈا تھا، اور اسی کی وجہ سے اب اس پلینٹ پر انسانوں کی لائف سیف تھی۔ کٹائے ایک رینجر بننے کے لیے بہت زیادہ ایمبیشیس تھا کیونکہ اس کی بہن اس کو بچاتے ہوئے ان کریچرز کے ہاتھوں ماری گئی تھی، اور اسی لیے وہ بچی ہوئی کریچر سے لڑنے کے لیے اور اپنی سسٹر کا بدلہ لینے کے لیے ایک رینجر بن رہا تھا، لیکن ایویلیوشن ڈے پر کٹائی کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے ایز اے رینجر سلیکٹ نہیں ہو پایا، اور اس وجہ سے اب کٹائی بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کٹائی کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے مشن سے واپس اپنے گھر آئے تھے۔ یہاں سائفر اپنی وائف سے ملتا ہے اور ڈنر کے دوران سائفر اپنے بیٹے کٹائی سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ٹریننگ کا کیا بنا، اور اس بات پر کٹائی جواب دیتا ہے کہ وہ ایز اے رینجر سلیکٹ نہیں ہو پایا، لیکن جیسے ہی سائفر کٹائی سے یہ کہتا ہے کہ اسے اور محنت کرنی چاہیے تو اس بات پر کٹائی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کھانا چھوڑ کر یہاں سے جانے والا ہوتا ہے کہ سائفر کٹائی کو یہاں پر روکتا ہے۔ ڈنر کے بعد سائفر اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ وہ اب اپنے لاسٹ مشن پر جا رہا ہے کچھ رینجرز کو ٹریننگ دینے کے لیے، اور اس کے بعد وہ اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لے گا، اور یہاں سائفر کی وائف اسے کہتی ہے کہ تمہیں کٹائی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ یہ سیکھ سکے کہ ایک رینجر کیسے بنا جا سکتا ہے، اور یہیں پر وہ سائفر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کٹائی ابھی تک اپنی سسٹر کی ڈیتھ کا بلیم اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اب نیکسٹ ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ سائفر اور کٹائی اپنے نیکسٹ مشن کے لیے تیار تھے، اور ان کے جانے سے پہلے سائفر کے پاس ایک رینجر آتا ہے جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اور وہ رینجر اپنی ایک ٹانگ پر ہی کھڑے ہو کر سائفر کو سلیوٹ کرتا ہے کیونکہ جنگ کے دوران سائفر نے اس کی جان بچائی تھی، اور اپنے فادر کی اتنی رسپیکٹ دیکھ کر کٹائی کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رینجرز اس کریچر کو اپنی شپ میں لوڈ کر رہے تھے ٹریننگ پرپس کے لیے۔ وہ اسپیس شپ نووا پرائم سے ایک نیو پلینٹ کے لیے ٹیک آف کرتی ہے، اور راستے میں سائفر اپنے بیٹے کٹائی سے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اس اسپیس شپ کی سیٹس عجیب ہونے کی وجہ سے کٹائی کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور اب کٹائی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسپیس شپ کی اس طرف جاتا ہے جہاں پر اس کریچر ارسا کو باندھا گیا تھا، لیکن یہاں پر ایک رینجر کٹائی کو ارسا کے پاس جانے سے روکتا ہے، لیکن پاس بیٹھا ہوا رینجر کا گروپ اسے الاؤ کرتا ہے کہ وہ ارسا کے پاس چلا جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ بھی اپنے فادر کی طرح بہادر ہے، اور جیسے ہی کٹائی ارسا کے پاس جاتا ہے ارسا اس کے ڈر کو اسمیل کر لیتی ہے اور غصے سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی دوران سائفر جاگتا ہے اور وہ نوٹس کرتا ہے کہ شپ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ اپنی رنگ کی ہیلپ سے شپ کی گریویٹیشنل فورس کو چیک کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ شپ میں کچھ بند ہے۔ یہاں کٹائی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی بیلٹ باندھ لیتا ہے اور سائفر پائلٹ کے پاس جاتا ہے، اور یہیں پر ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ شپ ایک ایسٹرائڈ شاور کے اندر غلطی سے انٹر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شپ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اب انہیں قریب ہی کوئی ہیومنز کے لیے سوٹیبل پلینٹ ڈھونڈنا تھا۔
पायलट के सर्च करने के बाद उन्हें करीबी प्लेनेट अर्थ नजर आता है, लेकिन साइफर को अर्थ सेफ नहीं लग रहा था क्योंकि ह्यूमंस के यहाँ से चले जाने के बाद वो एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें अर्थ पर लैंड करना पड़ता है। अब शिप अर्थ की तरफ बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही थी और यहाँ पर साइफर अपने बेटे किटाई के पास आता है, जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसे अब बहन के मरने का सीन याद आ रहा था। यहाँ साइफर अपने बेटे को काम डाउन करता है और उसी दौरान शिप बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से टूट जाती है। सभी लोग शिप से बाहर गिर जाते हैं और क्योंकि किटाई ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, वो सीट पर ही रहता है और उसी क्रैश लैंडिंग के वक्त किटाई भी बेहोश हो जाता है। और आखिर अब ह्यूमंस 1000 साल बाद अपने घर वापस अर्थ पर आए थे। किटाई अब होश में आकर अपने इर्द गिर्द रेंजर्स की डेड बॉडीज देख रहा और वहीं पर उसे अब साइफर की बॉडी भी मिलती है। किटाई उसे हक करता है, लेकिन कुछ ही देर में किटाई बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब साइफर को होश आ जाता है। अब अच्छी बात तो ये थी कि साइफर अभी तक जिंदा था, लेकिन बुरी बात ये थी कि उसकी दोनों टांगे बहुत बुरी तरह इंजर्ड थी। यहाँ साइफर किटाई से पूछता है कि कितने लोग जिंदा हैं और तब किटाई साइफर को बताता है कि हमारे अलावा यहाँ पर सब मर चुके हैं। और वो साइफर को ये भी बताता है कि शिप का वो पार्ट जिसमें अर्सा को कैद किया हुआ था वो भी गायब है। और यहाँ साइफर को लग रहा था कि वो क्रिएचर शायद इस एक्सीडेंट में मर गई होगी, लेकिन वो किटाई को केयरफुल रहने को कहता है। साइफर किटाई को एक कम्युनिकेटर के बारे में बताता है जिसका नाम बीकन है और वो नोवा प्राइम पर इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू सिग्नल्स पहुंचाने के काम आता था। लेकिन वो लोग ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि बीकन पूरी तरह डैमेज हो गया था। अब किटाई साइफर को कंट्रोल पैनल तक लेकर जाता है, जो कि लकीली अभी तक वर्क कर रहा था। और इस कंट्रोल पैनल से साइफर दूसरे बीकन की पोजीशन को ढूंढता है, जो कि शिप के दूसरे एरिया में था। और वो शिप का पार्ट क्रैश लैंडिंग के वक्त यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गिरा था। वो लोग बीकन के बगैर कभी भी घर नहीं जा सकते थे और अब हर हाल में उन्हें वो बीकन हासिल करना था। और क्योंकि साइफर की दोनों लेग्स इंजर्ड थी और वो चल नहीं पा रहा था, इसीलिए ये सब काम किटाई को करना था। किटाई के लिए ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन साइफर उसे बताता है कि वो हर वक्त उसे कंट्रोल पैनल की हेल्प से देखता रहेगा। और इसी के साथ साइफर किटाई को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो यहाँ की क्रिएचर यानी अर्थ की क्रिएचर से बच कर रहे, क्योंकि इन 1000 सालों में ये क्रिएचर जरूर इंसानों के लिए खतरनाक हो गई होंगी। अब साइफर किटाई को कम्युनिकेटर, वेपन और कुछ कैप्सूल्स देता है और इन कैप्सूल्स में एक ऐसा फ्लूइड था जो कि ऑक्सीजन को इनहेंस कर सकता था, क्योंकि इस टाइम अर्थ पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो थी, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो सकती थी। अर्थ की एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से अर्थ का क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इसीलिए साइफर किटाई को ऐसी जगहों पर रहने को कहता है जो जगह थोड़ी गर्म हो, ताकि अर्थ की हीट उसे रात में वार्म अप रखे। किटाई के जाने के बाद साइफर अपनी लेग को चेक करता है, जो कि बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और अब बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से साइफर पेन किलर लेता है, जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। लेकिन सोने से पहले साइफर कंट्रोल पैनल पर नोटिस करता है कि किटाई एक जंगल में पहुंच गया है, जहां से एक क्रिएचर उस पर अटैक करने वाली थी। साइफर जल्दी से उन क्रिएचर्स के बारे में किटाई को इन्फॉर्म करता है और उनसे दूर रहने को कहता है। और अब हमें किटाई को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक जायंट मंकी था। किटाई उस मंकी से डरकर उस पर एक पत्थर फेंकता है, पर यहाँ अब किटाई पर मंकीज का ग्रुप अटैक करने वाला था, लेकिन किटाई जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। साइफर किटाई को अपने कंट्रोल पैनल से डायरेक्शन गाइड कर रहा था और किटाई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था। और आखिर वो मंकीज उसका पीछा छोड़ ही देते हैं जब वो एक रिवर में जंप करता है, लेकिन यहाँ से उसकी बॉडी पर एक पॉइजनस लीच अटैच हो जाती है। साइफर अभी भी कंट्रोल पैनल से किटाई को देख रहा था और वो किटाई को अब एंटीडोट लेने को कहता है। किटाई जैसे ही वो एंटीडोट अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद साइफर किटाई को जगाता है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था और उसे रात होने से पहले पहले अर्थ के किसी हॉट स्पॉट की तरफ जाना था, अगर वो फ्रीज होकर मरना नहीं चाहता था तो। अब किटाई जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए किसी हॉट स्पॉट की तरफ भागता है और दूसरी तरफ हम साइफर को देखते हैं, जो कि अपनी सर्जरी कर रहा था। पर इस दौरान साइफर को लग रहा था कि अब वो और जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए अब वो मरने से पहले अपनी फैमिली की कुछ मेमोरीज देखता है। और यहीं पर दूसरी तरफ किटाई भी कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं था, क्योंकि उन मंकीज से बचते हुए उसके 2 ऑक्सीजन कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो गए थे और अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे जल्द ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। यहाँ साइफर किटाई से उसकी कंडीशन पूछता है और यहाँ वो साइफर को झूठ बोल देता है कि हर चीज ठीक है। अब रात हो जाती है और किटाई को हम सेफली एक केव में देखते हैं और यहाँ किटाई साइफर से सवाल करता है कि आपने घोस्टिंग टेक्निक कैसे ढूंढी थी। और यहाँ साइफर उसे बताता है कि जब वो कहीं जा रहा था तो एकदम से उसके सामने एक अर्सा अपीयर हुई
और साइफर अर्सा को देखते ही डर के वहीं पर खड़ा हो गया और अर्सा अपनी अजीब सी आवाज से उसके शोल्डर के पास शाउट करने लगी और इसी दौरान अचानक वो दोनों एक रिवर में गिर गए। साइफर उसे बताता है कि रिवर के बॉटम में अर्सा उसकी बॉडी के ऊपर थी और वो साइफर को खाने ही वाली थी। उस टाइम मैंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया और इसीलिए मेरे माइंड से सारा डर खत्म हो गया। और क्योंकि साइफर का डर खत्म हो गया था तो अर्सा उसे देख नहीं पाई और साइफर ने इजीली उसे मार दिया। और यहाँ अब किटाई को पता चल गया था कि ट्रिक सिर्फ ये थी कि उन्हें डरना नहीं था। किटाई अपने फादर की स्टोरी सुनते सुनते ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब किटाई अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और दूसरी तरफ साइफर को अर्सा की प्रेजेंस फील होती है और यहीं पर किटाई अब एक हाई वाटरफॉल तक पहुंचता है जिसे क्रॉस करने के बाद ही वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता था। इस पॉइंट पर आकर साइफर किटाई से पूछता है कि उसके ऑक्सीजन कैप्सूल्स कितने हैं और किटाई उसे ये बताते हुए बहुत एम्बेरस होता है कि उसके पास सिर्फ 2 कैप्सूल रह गए थे। और अब साइफर किटाई को उसका मिशन वहीं पर छोड़ देने को कहता है। किटाई को इस टाइम वो वाकया याद आता है जब उसकी सिस्टर ने उसे अर्सा से बचाया था और अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और गुस्से में वो अब साइफर से कहता है कि वो बुज़दिल नहीं है और यही कहते साथ ही वो उस वाटरफॉल से जंप कर देता है और जंप करते साथ ही वो अपने सूट को एज अ गाइड डायरेक्शन यूज कर रहा था। अब इससे पहले कि वो बॉटम तक पहुंचता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बर्ड उस पर अटैक कर देता है और इसी वजह से उसका कम्युनिकेटर भी टूट जाता है जिसकी वजह से वो साइफर से कांटेक्ट में था। कुछ देर बाद किटाई को एक बर्ड के नेस्ट में होश आता है और यहाँ पर किटाई के इर्द गिर्द छोटे छोटे चिक्स थे। किटाई जैसे ही उस नेस्ट से बाहर निकलता है तो एक लेपर्ड उस पर अटैक कर देता है। किटाई अपनी जान बचाने के लिए लेपर्ड से लड़ता है लेकिन इस लड़ाई के दौरान सारे ही चिक्स मर जाते हैं और अब किटाई उस बर्ड से बचने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइफर सैटेलाइट मॉनिटर से किटाई को ढूंढ रहा था लेकिन किटाई के मिलने के बजाय उसे 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो कि ट्री से लटके हुए थे और इससे उसे पता चला था कि वो अर्सा अभी भी जिंदा है। इस सब के बाद हम दोबारा किटाई को देखते हैं जो कि एक केव में आराम कर रहा था और अब वो यहाँ पर एक मैप बनाता है जिसकी हेल्प से वो टेल की डायरेक्शन ढूंढ सके। नेक्स्ट मॉर्निंग अब किटाई अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है लेकिन यहाँ वो बर्ड भी उसका पीछा कर रहा था और अब इसी दौरान किटाई को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी और इसीलिए अब वो अपना आखिरी ऑक्सीजन कैप्सूल लेता है और उसके बाद किटाई एक बोट बनाता है और उस बोट पर सफर करते करते किटाई को नींद आ जाती है और जैसे ही किटाई की आंख खुलती है तो वो नोटिस करता है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है और उसके इर्द गिर्द हर चीज फ्रीज हो गई है और अब यहाँ पर किटाई सर्दी की वजह से बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि किटाई को कोई अजीब सी चीज अपनी तरफ खींचती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे पता चलता है कि उसे जो लग रहा था कि बर्ड उसके पीछे है उसी ने उसकी जान बचाई थी। किटाई उस बर्ड को थैंक्स करता है लेकिन यहाँ पर किटाई को पता चलता है कि वो बर्ड मर गया है। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर किटाई आगे बढ़ता है और आखिरकार वो शिप की टेल तक पहुँच ही जाता है और यहाँ आकर वो सबसे पहले लिक्विड ऑक्सीजन को ढूंढता है और ऑक्सीजन लेने के बाद अब वो टेल के उस चैम्बर तक जाता है जहाँ पर उर्सा को कैद किया गया था लेकिन यहाँ वो देखता है कि उर्सा यहाँ पर नहीं है और अब आखिर यहाँ पर किटाई को बीकन भी मिल जाता है और यहीं पर वो साइफर से भी कांटेक्ट करता है लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो साइफर की बात नहीं सुन पा रहा था। लेकिन साइफर अब अपने बेटे को जिंदा जानकर बहुत ज्यादा खुश था। किटाई अब बीकन की हेल्प से रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करता है लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से बीकन वर्क नहीं कर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि अब किटाई को एक वोल्केनो दिखता है और किटाई डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाकर बीकन को यूज करेगा लेकिन इससे पहले वहाँ पर उर्सा आ जाती है। किटाई उससे बचकर भाग रहा था लेकिन अर्सा कंटिन्यूसली उसके पीछे थी क्योंकि वो किटाई के डर को महसूस कर सकती थी और अब अर्सा किटाई को खाने ही वाली होती है कि किटाई पानी में जंप कर देता है और इस तरह वो कुछ देर के लिए अर्सा से बच जाता है और अब पानी से वो माउंटेन के ऊपर तक का सफर तय करता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि साइफर भी अपनी इंजरीज की वजह से बेहोश हो गया था और किटाई भी अर्सा से डर रहा था और अब अर्सा के पास आने पर उसे अपने फादर के वर्ड्स याद आते हैं और अब जैसे ही किटाई अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है तो उसके अंदर से भी सारा डर खत्म हो जाता है और ऐसे उर्सा उसे भी ढूंढ नहीं पाती और अब वो उर्सा को मारने के काबिल हो जाता है। उर्सा को मारकर अपना बीकन यूज करता है और नोवा प्राइम तक रेस्क्यू सिग्नल्स पहुंचाता है और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किटाई एक रेस्क्यू शिप में है और हर कोई यहाँ पर उसे अप्रिशिएट कर रहा है और दूसरी तरफ साइफर भी इसी रेस्क्यू टीम में एक बेड पर है और उसे उसकी इंजरीज के लिए ट्रीट किया जा रहा है और जैसे ही वो देखता है कि उसका बेटा उसके पास आया है तो वो अपने बेटे को रेंजर्स की हेल्प से खड़ा होकर सल्यूट करता है और अब यहीं पर साइफर और किटाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।